स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। क्या बसनगौड़ा के इशारों पर चल रहा है प्रशासन? सार्वजनिक जगहों पर एमएलए की मनमानी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सार्वजनिक जगह पर कोई धार्मिक इमारत का निर्माण नहीं कर सकते। क्या यह सिर्फ कानून की किताबों में है? इसका पालन क्यों नहीं किया जाता? यही आरोप लेकर बीजापुर के एमएलए के इशारों पर क्या प्रशासन चल रहा है? स्लम घोषित की जगह पर गार्डन और गार्डन की जगह पर धार्मिक इमारत का निर्माण। इसको लेकर सार्वजनिक जनता की तकरार। वार्ड नंबर 1 गैंगबोडी 808/E सिटी सर्वे पर देवस्थान के निर्माण पर मूल निवासियों की पालिका कमिश्नर और जिला अधिकारी से रोकने की फरियाद। फिर से सरकारी अधिकारियों का जनता के हित में काम करने का विश्वास और समाज चिंतकों का कानून उल्लंघन करने पर इंसाफ की गुहार। आनंद धुमाले कारपोरेटर की जानकारी पर अब्दुल रजाक वर्ती का सामाजिक इंसाफ के लिए प्रदर्शन। ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿವಿಷನ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 364 ದಿನಾಂಕ 17/7/19 ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗ ಗಾರ್ಡನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2008ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲಮ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 671 672 ಶಾಸ್ತ್ರಿನಗರ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಇದು ಯಾವ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಕಡೆ ತಾವೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ 23/7/2019 ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾತನಾಗ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಡೆ ಮಿಯಾ ತೋ ಬಡೆ ಮಿಯಾ ಛೋಟೆ ಮಿಯಾ ಭೀ ಸುಬಾನಲ್ಲ ಕಿಸಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಮಗಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿದ ಜನರು ಬಡವರು ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ತೆಗಿಲಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಬಂಧ ನೀವು ಆ ಬಯಲು ಜಾಗನಾಗ ನೀವು ಮನೆ ಮಂದಿರ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ? ಆಮೇಲೆ ತಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಾವು ಒಂದು ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಕಮಿಷನರ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಕಮಿಷನರ್ ಅಲ್ಲ, ತಾವು ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ತಾವು ಯಾಕೆ ಮಲ್ತಾ ಧೋರಣೆ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? ತಾವು ಏನು ಶಾಸಕರ ಕೈಗೊಂಬಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಇದು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೆಲಸ ನಿರ್ಧರಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮಗೇನದ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಆ ಜಾಗನೂ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಆ ಮನೆಯನ್ನು ನೀವು ಇಸ್ಲಾಂ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಏನೈತಿ, ನೀವು ಶಾಸಕ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಸರ್? ಇದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಾಕತ್ತೈತಿ, ಇದರ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಾಕತ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡಾಕತ್ತ ಅವ್ರು ಪೂಜೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಒಳಗೆ ರಾಮರಾಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಮತ್ತು ಇದೇ ಥರ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಅವರಿಗೊಂದು, ಕಾನೂನು ನಮಗೊಂದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಇರ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥವ್ರು. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡೋದು ಹಕ್ಕಿದೆ, ನಾವು ಕೇಳುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಶಾಸಕರು ಒಂದು ಕೋಮಿನ ಶಾಸಕರಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಇದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ದರ್ಬಾರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ? ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ? ವಿಜಯಪುರ ಏನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತೀವಿ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ? ನೀವು ತಾವು ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾವು ಶಾಸಕರು ಕೂಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡತ್ತೀವಿ? ಅಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೇನು ಯೋಗಾಪುರನಾಗ ಮನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಏನು ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರ? ಹಾಗಿದ್ರೆ 3500 ಮನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಳಗೆ ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಮನೆ 3-4 ತಿಂಗಳ ಮಂದಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಲಿಸ್ಟು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದ. ಆ ಲಿಸ್ಟು ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷನಾಗ ಬಂದ್ಕಿಸಿ ಶಾಸಕರು ಬಂದ್ಕಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಟರ್ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಪೂರ ಡೈಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ಡೆಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್? ಹಾಗೇನು ಇಲ್ಲ. ಏನಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಾವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಶಾಸಕರ ಸಮೇತ ತಾವು ಕಮಿಷನರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಡೀ ವಿಜಯಪುರ ಕಮಿಷನರ್ ಅದೇರಿ. ಇಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿದು ಏನೈತಿ ತಾವು ಅದು ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನೇನಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದ ಸರ್. ನಾವು 100% ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದು ಅದಂದ್ರೆ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬಡವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ತೋರ್ಸಾಕತ್ತೀರಿ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗಾರ್ಡನ್ನಾಗ ಏನೇನು ಅದಾವ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ತೆಗಿಬೇಕು.
ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ರು ಸಹ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಅದಲ್ಲ, ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲ, ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ತೆಗೀರಿ. ನಾವು ಹೇಳಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ಯಾರ, ಎಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳೋದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ತೆಗಿಬೇಕು. ತಾವು ಯಾವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಆಗೈತಿ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ, ಏನು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ, ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ತೆಗಿಲಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವೇನು ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಾಕ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೋಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನಾಗ 3 ಮಂದಿರ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟವಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನಾಗ ಗಣಪತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕಿಸಿ ಅದು ಮಾಡೀನಿ. ನಾವು ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಶಾಸಕರ ವರ್ತನೆಗೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ವರ್ತನೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. आज बीजापुर शहर में हमारे माजी कॉरपोरेटर आनंद धुमाड़े साहब मुझे फ़ोन करके बताया कि तुम्हारे वार्ड में हमारे एमएलए साहब को जगह खाली करना है, क्योंकि वो गार्डन का जगह है अगर बोल के। तो हमारे वार्ड में यहाँ पे एक क्या तो भी मंदिर बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, तो ये तुम्हारा मालूम है कि नहीं बोला। मेरे को तो मालूम नहीं है, मगर वो जो भी डॉक्यूमेंट है देख भेजो, उसका सर्वे नंबर क्या है देख भेजो। तो मैं आजिम इनामदार क्या से देख भेजता हूँ, देख के वो क्या करना है एक्शन लो बोलते मेरे को बोले। तो जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ पे उतारा, देखने के बाद ये पता चलता है कि 868 प्लाट नंबर 15 खुला जगह ये जो है, ये सार्वजनिक के वास्ते खुला जगह छोड़ा है, गार्डन के लिए छोड़े गए। तो ये गार्डन के लिए छोड़े गए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, आप जाकर देखने को पता चलता है कि हर वार्ड में जब कोई काम होता है तो एमएलए साहब आके पूजा करते हैं। एमएलए साहब की पूजा के माध्यम से कोई काम चलता है। हमारे यहाँ एमएलए साहब पे हमारे कहावत होती है, बड़े साहब तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह बोलते हैं। अब यहाँ पे उनके सुपुत्र, उनके बेटे आको ये पूजा करे हैं। तो मुझे अफसोस ये हो रहा है कि हमारे एमएलए साहब इससे पहले कर्नाटक विधानसभा में इनका एलिया क्वेश्चन नंबर 364 17/7/2019 को इन्होंने किया है। उसमें क्या पूछा है इन्होंने कि यहाँ पे बीजापुर में हनुमान नगर सर्वे नंबर 488 प्लाट नंबर 114 और शास्त्री नगर सर्वे नंबर 671 672 में जो अतिक्रमण करे हैं उसके बारे में उन्होंने डिटेल्स पूछा है। तो मुझे ये पता चलता है, और उसके साथ साथ ये एक उल्लेख भी किया है उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट जिसे हिंदुस्तान सर झुकाता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो जगह जिसके लिए रखा गया है वहाँ वहीं पे बनाना चाहिए। तो यहाँ पे अतिक्रमण कैसे हो गया? क्या ये बीजापुर के पैदाइश नहीं है? क्या ये बीजापुर में छोटे बड़े नहीं हुए? क्या एक ही दम एमएलए होकर पैदा हुए? क्या एमएलए होने से इनको पता नहीं था इससे पहले क्या हुआ है बीजापुर में? तो जबकि यहाँ पे 2009 में स्लम डिक्लेयर हुआ है, उस स्लम डिक्लेयर में 130 परपंच फैमिलीज़ वहाँ पे रहते हैं, बसते हैं। वो छोटे छोटे गरीब तबके के हैं, जिससे 10 बाय 10, 10 बाय 15, 10 बाय 12 के घर हैं, पतरास के शेड हैं। तो वो उसमें रह रहे हैं, तो इनको दिक्कत आ रही है। तो ये क्या वजह है कि ये क्वेश्चन पूछ के इन गरीबों को वहाँ से हटाना चाह रहे हैं, और यहाँ कौन सा गार्डन बना के उन लोगों को देना चाह रहे हैं? जबकि वहाँ पे इब्राहिम रोज़ा के बाजू एक बहुत बड़ा गार्डन है, तो इब्राहिम रोज़ा के सामने भी एक गार्डन है। तो ये गार्डन का इनके लिए काफ़ी नहीं है। उसके सामने सैनिक स्कूल है, उतना बड़ा गार्डन है, 100 के एकड़ों से गार्डन है। क्या वहाँ पे लोग वहाँ जाके वाकई नहीं कर सकते? तो इन 130 गरीबों को काटने का इरादा इन्होंने क्यों किया? जबकि वहाँ के लोग ये जब इलेक्शन खड़े थे तो उनका इलेक्शन करके दीर्घ नमस्कार करे, तो ये एक इतिहास भी हमारे देखने को मिलता है। तो ऐसे लोगों को जो अपना साथ दिए, उन लोगों को ये घर निकालने लगे हैं, तो उनके ऊपर क्या बीतती होंगी, आपको इसे ऐसा सुनना चाहिए। मैं आज इसलिए यहाँ पे खड़ा हूँ कि जब एलए क्वेश्चन के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जिस जगह जहाँ पे जो बनाना है वहीं पे बनाना है, वह कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना बोल के आदेश है। आप एमएलए साहब बोल रहे हैं, डीसी को लेटर लिखे हैं और एलए क्वेश्चन में सवाल पूछे हैं। वही एमएलए अपने बेटे के माध्यम से दूसरे ओपन जगह में जाके अपना एक गुड़ी बना रहे हैं या मंदिर बना रहे हैं या विदा चौक क्या बना रहे हैं, वो डिटेल उनको मालूम है। मगर जो पूजा किए हैं उस पूजा का कारण क्या है? क्या तुम वहाँ गार्डन बना रहे हैं? क्या वहाँ कोई चीज़ बना रहे हैं? तो वहाँ क्या बना रहे हैं? ये लोगों को आपको जाने के बाद उस जगह पे जाने का आपको पता चलेगा क्या बना रहे हैं। तो ये सौतेला व्यवहार ये क्यों कर रहे हैं? एक जगह बोलते हैं कि जो चीज़ है जहाँ पे रहना है रहने दो, और ये दूसरी जगह बोलते हैं यहाँ पे अतिक्रमण है काटो। अतिक्रमण कैसे होता है? जबकि वो स्लम डिक्लेयर होता है तो डीसी साहब
एसी साहब, तहसीलदार साहब, म्यूनसिपलिटी कमिश्नर साहब और वहाँ के योजना अधिकारी सब मिलके वो पांचों आदमी मिलके उसे फाइनल करे होते हैं। और उससे पहले उसे कौन से भी ऑब्जेक्शन है क्या उसे पूछे रहते हैं। जब एलिया कोई पूरा स्लम डिक्लेयर होकर वो इतने सालों से आराम से रह रहे हैं, उनको स्लम से उनके घर सैंक्शन हुए हैं। ये 1028 घर जो सैंक्शन हुए प्रधानमंत्री के आवास रोजगार योजना में, उसमें से ये भी 80 घर इसमें हैं। जब ये पूरे 1028 घरों में से 80 घर हैं तो ये 80 घर बनाना चाहिए था, नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि शिकार खाने में बनाए, यहाँ हमारे ज्ञान घोड़ी में बनाए और हर एक स्लम जहाँ जहाँ पे हैं सब जगह बनाए। तो यहाँ पे क्या इनको काटे चुभ रहे थे? क्या ये वहाँ बनाना मुनासिब नहीं समझे थे? क्या इनको अपने घर के पैसे लगा के वहाँ बना रहे थे? क्यों ये सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? वहाँ के हिंदू, वहाँ के मुसलमान ये अफसोस कर रहे हैं कि हमने वोट डाल के किसको चुना। अब उनको पता चल रहा है कि ये क्या करें। तो ये पता चलने से पहले ये घर से बेघर हो जाएंगे। और महानगर पालिका के कमिश्नर जो है उनकी बात सुनकर स्लम बोर्ड को ये लेटर लिखते हैं कि ये यहाँ पे घर नको बनो, हम काटने वाले हैं। इनको क्या अधिकार से वो काटने वाले हैं? हम किसके आदर से किसके करने वाले हैं? आप यहाँ भी अभी आपकी गवर्नमेंट होने वाले, मिनिस्टर भी बनने वाले हैं, क्या यही काम करने के लिए बनेंगे? क्या इस काम के लिए आपका मतलब ये है कि एमएलए साहब के इशारों पर प्रशासन काम कर रहा है? 200% एमएलए के आदेश के मुताबिक यहाँ पे प्रशासन काम कर रहा है। तो हम इससे खंडना करते हैं। ये एमएलए बीजापुर के होते हैं, कोई पक्ष पार्टी के, कोई कौम के, कोई इसके एमएलए नहीं होते। आपको कितना मोहब्बत आपके धर्म से होता है उतना ही मोहब्बत दूसरे धर्म वालों को भी होता है। मगर कोई धर्म को या कोई आदमी को, कोई सिंगल आदमी को गाली दे तो चलेगा, मगर कोई जात पात को गाली दे तो हम कोई बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। आपको ये इन्फॉर्मेशन आनंद धुमाड़े ने बिल्कुल दी? दिए। और आनंद धुमाड़े जो पिछले दिनों में वहाँ पर एक गार्डन था, वहाँ पर एक आलीशान मंदिर बनाए, उनके ऊपर भी केस हुआ है। वो उनको पता है वो क्या करे हैं क्या नहीं करे हैं। जैसा ही मुझे पता चला मेरे वार्ड में, कानून तो सबके मेरे वार्ड में इससे पहले भी वो क्या बना है, कैसे बना है, वो उनको भी मालूम है, एमएलए को भी मालूम है। तो उसके लिए क्यों क्वेश्चन क्यों नहीं किए? उसके वहाँ पे अपने किए क्वेश्चन क्यों नहीं किए? वज्र हनुमान वहाँ बनाते थे, वहाँ क्यों क्वेश्चन नहीं किए? सुप्रीम कोर्ट अरे जो सुप्रीम कोर्ट आदेश है एक लेके नहीं है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश में क्या है? शास्त्री नगर कोल्चे प्रदेश कर को है क्या? सुप्रीम कोर्ट का आदेश जहाँ पर भी ओपन जगह है, जहीं पर भी जो भी चीज़ बनी है उसको निकालने का है। तो निकालो, हमारा स्वागत है, पूरा निकालो। जब निकालते हैं आपको इतना यह है, निकालने की शौक़ है तो निकालो। निकालने के बाद आप बोलो हम जाके हम उनको निकालेंगे। आप पहले पालन करो साहब, आप पहले पालन करो, उसके बाद हमें आप बोलो, हम खुद हमें काम करें। आज हम लोग डीसी ऑफिस में डीसी साहब और कमिश्नर साहब को मिल के एक रिक्वेस्ट करने के लिए आए थे कि जिस तरीके से आप लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, जिस तरीके से आपको लगता है उस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग जो है नहीं वार्ड नंबर 34 के कॉर्पोरेटर अब्दुल रज़ाक खौरती साहब और वहाँ के 1 नंबर वार्ड के लोग और 34 नंबर वार्ड के लोग वगैरह आए थे। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि महानगर पालिका के कमिश्नर जो है नहीं वो पूरे सिटी के कमिश्नर हैं या एक एमएलए के कमिश्नर हैं, हमें नहीं पता चल रहा। जबकि आप वो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश लेकर जाकर 34 नंबर वार्ड के जो ये थे जो एक स्पेस था, वो स्पेस पे आप एप्लीकेबल करते हैं कि वो लोग जो एनक्रोचमेंट किए हैं, जो लोग वो घर बनाए हैं वो इलीगल हैं, और जो घर हैं वो घर जो है ना गार्डन की जगह में नहीं बनाना बोल के आप सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश लेकर आकर उसे डेमोलिश करने के लिए आप कोशिश करते हैं। जबकि आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हर गार्डन में एप्लीकेबल होता है। अब मैं जो पहले बनाए हैं उसके खिलाफ तो मैं नहीं बात करूंगा, जो पहले बनाए हैं बनाए, जो नए बना रहे हैं 34 नंबर मतलब 1 नंबर वार्ड में जो मंदिर का उद्घाटन करने वास्ते जो है नहीं एमएलए के बेटे जो है नहीं आके उद्घाटन करते हैं, और इस शहर के एमएलए जो है नहीं वो क्या करते हैं, सिर्फ एक एलोकेशन करते हैं, कहाँ पे असेंबली में वगैरह एलोकेशन करते हैं, पर्टिकुलर वार्ड के मतलब नंबर्स डालते हैं, उस प्रॉपर्टी के बारे में जो है नहीं एनक्रोचमेंट किए हैं या इलीगल कंस्ट्रक्ट किए हैं उसके बारे में सवाल करते हैं। आप एक कम्युनिटी को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं या फिर एक पर्टिकुलर वार्ड के मेंबर को या वार्ड के लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें नहीं समझ पा रहा। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कमिश्नर से कि अगर आप बीजापुर के कमिश्नर हैं तो आप हर जगह जो है ना आप कानून के तरीके से काम कीजिए। सुहाने सफर का अब लीजिए आनंद, आपके लिए रोजाना बीजापुर से पुनः आरामदायक सुविधा के साथ रात 10 बजे बीजापुर केंद्र बस स्टैंड दात्री मस्जिद के सामने एसी स्लीपर साई कृपा ट्रैवल्स जो आपकी सेवा के लिए अब है तैयार। यात्रीगण इसकी बुकिंग और अधिक जानकारी के लिए गणेश ट्रैवल्स ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं।
और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।